we meet together at one place, जब कभी भी हम एक साथ एक जगह पर मिलते हैं, not only physically, सिर्फ हमारे शारीरिक रूप से नहीं, but by souls together, परंतु आत्मा से एक साथ मिलते हैं, not to chit chat, okay, सिर्फ यहाँ वहाँ की चुगलियाँ करने के लिए नहीं, but to listen the word of God लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए and absorb it totally in our heart और अपने हृदय के अंदर उसे लेने के लिए and implement in our daily life. और हर रोज की जीवन में हम उसे इस्तेमाल करने के When we लिए, meet together to do that, और जब भी हम ये सब करने के लिए एकत्रित होते हैं, there is glory to God. तब परमेश्वर की महिमा होती है। Hallelujah. हालेलुया। The ones who are, in the online meeting, can you all say a heartful hallelujah? तो जो ऑनलाइन पे जुड़े हैं, क्या वो हृदय पूर्वक हालेलुया कहेंगे? Yes. Yes, thank you so much, because we are giving glory to the Almighty, living, powerful God. धन्यवाद, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान और जिंदा परमेश्वर को महिमा करते हैं। So yes, really, again, it's an amazing opportunity. और हाँ, सच में ये एक बहुत ही अद्भुत मौका है। So yes, we are thanking God for this wonderful opportunity our God has given to us. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत मौका दिया है। To remind you all, आप सबको याद दिलाने के लिए I'd like to say that we are continuing this series of the fruit of the Spirit. और हम ये आत्मा के फल को, The fruit of the Spirit. आत्मा का फल, हम आत्मा का फल, ये सीरीज को हम दोहरा रहे हैं। And the last week, और जो गया हफ्ता था, the topic was the works of the flesh. और विषय था, वो था शरीर के काम। We read about the works of the flesh और हमने शरीर के कामों के बारे में पढ़ा था and we understood it one by one, और एक एक करके हमने उन्हें समझा था, verse by verse. वचन से वचन। Now, the point that we derived from there is, और एक पॉइंट, एक गहरी बात जो हम उसमें से निकालते हैं, it is that the one who walks according to the flesh, कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं, the one who walks in the flesh according to the flesh, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, they shall not inherit the kingdom of heaven. वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। They shall not inherit the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। Let's read that verse once. आइए एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। Galatians गलतियों chapter 5 5वां अध्याय verse 21 और उसका 21 वचन, and the last part of it, और उसका जो अंतिम भाग है, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। So the works are the works of the flesh in this context. और इस वचन में हम देख सकते हैं वो काम जो है वो है शरीर के काम। So the one who walks according to the flesh तो जो शरीर के अनुसार चलते हैं and does the things of the flesh, और जो शरीर के काम करते हैं, the scripture is very clear about it. और वचन हमें बहुत साफ तरीके से बताता है, Crystal clear. बहुत ही स्पष्ट रीति से, That they shall not inherit the kingdom of heaven. कि वे The kingdom of God indeed. परमेश्वर के राज्य के वारिस न Now होंगे। the question comes, तो एक सवाल यहाँ पर आता है, the question should come. एक सवाल यहाँ आना चाहिए, If the people who walk according to the flesh will not inherit the kingdom of God, तो जो व्यक्ति या जो लोग जो शरीर के अनुसार चलते हैं
वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, So who will be, who will inherit the kingdom of God? तो फिर परमेश्वर के राज्य के वारिस यानी कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? The direct next verse, और उसके ही अगला जो वचन है, it reads, but the fruit of the Spirit is. पर आत्मा का फल। So, the just previous verse, उसके पहले वाला जो वचन था, it reads that they will not inherit the kingdom of God. वो इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। Means the ones who walk in the flesh, according to the flesh, they will not inherit the kingdom of God. तो इसका अर्थ है कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं, जो शरीर में होकर चलते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। But the next verse directly says, but the fruit of the Spirit is. परंतु उसका अगला ही वचन ये बताता है कि पर आत्मा का फल। So, who shall inherit the kingdom of God? तो कौन परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा? The one who has the fruit of Spirit in his life. जिनके अंदर, जिनके जीवन में आत्मा का फल होगा। The one who has the fruit of Spirit in his life, जिनके अंदर आत्मा का फल होगा, they are the one who will inherit the kingdom of God. और वे ही होंगे जो परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। Means they should have the Spirit in them. तो इसका अर्थ है कि उनके अंदर ये आत्मा होनी चाहिए। Which Spirit? कौन सी आत्मा? The Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। So if you have the Holy Spirit in you, तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, that Holy Spirit will bear fruit. तो वो पवित्र आत्मा फल लाएगा, And that fruit और वही फल qualifies you to inherit the kingdom of God. वो आपको परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने के लिए आपको योग्य बनाएगा। So what are the roots? What are the roots? तो मूल क्या है? What is the main point and the thing here? सबसे खास विषय यहाँ पर क्या है? That you should have the Holy Spirit. कि आपके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। If you have the Holy Spirit, और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, that Holy Spirit will bear fruit. तो वही पवित्र आत्मा फल उत्पन्न करेगा, And that fruit will qualify you to inherit the kingdom of God. और वही फल आपको परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने के लिए आपको वो बनाने के योग्य बनाएगा। There is a condition here. तो यहाँ पर एक शर्त है, The condition is, और वो शर्त ये है, even after having the Holy Spirit in you, आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा हो भी, and you don't walk according to the Spirit, लेकिन अगर आप उस पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते, means you have the Holy Spirit in you. इसका अर्थ है पवित्र आत्मा आपके अंदर है। How does the Holy Spirit come in you? तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे आएगा? By believing, विश्वास करने के द्वारा, by repenting, पश्चाताप करने के द्वारा, and by taking baptism. और बपतिस्मा लेने के द्वारा। By doing these things, ये सारे कामों को करने के you बाद get the gift of the Holy Spirit. तो आपको पवित्र आत्मा का फल प्राप्त The होगा। Holy Spirit comes in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, It becomes a part of your life. वो आपके जीवन का एक भाग बनेगा। But even after Holy Spirit being in you, और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर होने के पश्चात you walk according to the flesh, आप फिर भी शरीर के अनुसार चलते and हो, you're not walking according to the Spirit, और आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते, you're not letting the Holy Spirit take the lead. और आप ये होने नहीं देते कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, So the Holy Spirit
will not be able to produce a fruit. तो पवित्र आत्मा जो है वो फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा, Because you have the will, you have the free will. क्योंकि आपके पास वो स्व इच्छा की स्वतंत्रता दी गई है। God didn't make us a puppet. और परमेश्वर ने हमें एक कठपुतली नहीं बनाया, He has given us a free will. वो परमेश्वर ने हमें एक स्व इच्छा दी है। Now, using that free will, और उसी स्व इच्छा को इस्तेमाल करने के बाद if you let Holy Spirit lead your life, और अगर आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन को चलाने की अगुवाई देते हैं, then the Holy Spirit will bear the fruit of Spirit in your life. तो फिर पवित्र आत्मा जो है वो आपके जीवन में उस फल को उत्पन्न करेगा। That's why Paul writes this beforehand. तो इसलिए पौलुस यहाँ पर लिखता है, Beforehand, before only. और पहले से ही वो लिखता है। See, in verse 16 he writes, और 16 वचन में अगर हम देखते हैं तो पौलुस ने इस प्रकार से लिखा है, I say then, walk in the Spirit. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। See, in the verse 16 only, before only he has clearly written. देखिए 16 वचन में ही पहले से हमारे लिए लिखा गया है That you have to walk in the Spirit. कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है। Many believers कई ऐसे विश्वासी हैं, believing in Christ, मसीह में विश्वास करते हैं, repenting of their sins, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, taking baptism, बपतिस्मा लेते हैं, going to church every week, हर हफ्ते चर्च जाते हैं, but still jealous, लेकिन फिर भी उनके अंदर ईर्ष्या होती है, still pride, फिर भी उनके अंदर घमंड होता है, still adultery. फिर भी व्यभिचार होता है। Don't you think the Spirit is in them? तो क्या आपको लगता है कि पवित्र आत्मा उनके अंदर है? Don't you think that the Spirit is in them? Is in them. Is in them? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा उनके अंदर है? Yes, it is. हाँ, उनके अंदर है। Once they take baptism, the Holy Spirit is in them. जब आप बपतिस्मा लेते हो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। A believing baptism. You have believed in Jesus. जब आप मसीह में विश्वास करते हो तब जब आप बपतिस्मा लेते हो उस बपतिस्मा में You get the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। But लेकिन again you are off the track. और फिर से आप पटरी के बाहर जा रहे हो, Same life. फिर से वही जीवन, Same sin. फिर से वही पाप। The Holy Spirit is in you, पवित्र आत्मा आपके अंदर but है without fruit. लेकिन बिना फल के। Why? क्यों? Because you're not following the verse 16, which is you're not walking in the Spirit. क्योंकि आप ये 16 वचन जो है उसका पालन नहीं करते, वो है आत्मा के अनुसार चलना। You're not walking in the Spirit. आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते, You're walking in flesh. आप शरीर के अनुसार चलते हो। So when you walk in flesh, you don't give the lead to the Spirit. तो जब आप शरीर के अनुसार चलते हो तो आप आत्मा को मौका नहीं देते, But when you walk in Spirit, परंतु जब आप आत्मा में चलते हो then you are giving the lead to the Spirit. तब आप आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को अवसर देते हो। Now, there are many Christians asking questions. तो ऐसे कई मसीह हैं जो ऐसे सवाल करते हैं, If Jesus comes tonight, अगर यीशु मसीह आज रात आए तो will I be able to get to the kingdom of God? तो क्या मैं परमेश्वर के राज्य में जा सकता हूँ? How can I be so sure? तो मैं कैसे पूरी रीति से
मैं ये मान सकता हूँ that yes, if I die right now, if Jesus comes today, कि हाँ, अगर मैं मर जाऊं या फिर आज यीशु मसीह आए I will go to heaven. तो मैं निश्चित स्वर्ग राज्य जाऊंगा, And if I die, I go to paradise. और अगर मैं मरता हूँ तो मैं पारादीस जाऊंगा। How can I be so sure? ये मैं कैसे पूरी रीति से विश्वास के साथ कह सकता हूँ? To have that surety. Surety, okay. To be confident. इसे बड़ी मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, if you want to say that yes, I will go to the kingdom of God, आपको ये अगर कहना है कि हाँ मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा, you have to examine. तो आपको अपने आप को जांचना होगा। What? क्या जांचना होगा? What to examine? आपको क्या जांचना होगा? Examine that whether I have the fruit of spirit in me or not. तो ये जांचना कि क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा का फल है या नहीं। Because he who has the fruit of spirit in him, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा का फल है, he will for sure inherit the kingdom of God. क्योंकि वो निश्चित परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। So we have to check. तो हमें जांचना होगा, Really? सच में Do I have the fruit of spirit in me? क्या सच में मेरे अंदर आत्मा का फल है, Or I'm just baptized, going to church every weekend, that's all. या फिर मैं सिर्फ बपतिस्मा लिया हूँ और हर रविवार मैं आराधना जाता हूँ, कलीसिया जाता हूँ। That's not how it works. तो ऐसे नहीं कार्य होता है ये। You should walk in spirit. आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना होगा, And once the spirit is in you, और एक बार पवित्र आत्मा आपके अंदर हो, means you walk in the spirit, that means the spirit is in you. जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हो, इसका अर्थ है पवित्र आत्मा आपके अंदर है। And then the Holy Spirit produces a fruit. और फिर वो जो पवित्र आत्मा है वो फल उत्पन्न करती है। Now the Bible doesn't say fruits, it says fruit. और बाइबल फलों के विषय में नहीं बता रही यहाँ पर, परंतु फल, आत्मा का फल के विषय में बताती है। So the 9 slices of that fruit constitutes to one fruit. तो एक फल जिसके 9 भाग हैं, वो मिलकर एक फल बनता है। How do we check हमें कैसे जांचना चाहिए that whether I have the fruit of spirit in me or not? कि मेरे अंदर आत्मा का फल है या नहीं? Check जांचिए that whether you have love in you or not. आपके अंदर प्यार है या नहीं? Check जांचिए whether you have joy in you or not. कि आपके अंदर आनंद है या नहीं? Check जांचिए whether you have peace in you or not. कि आपके अंदर शांति है या नहीं? Check जांचिए whether you have long suffering in you or not. कि आपके अंदर धीरज है या नहीं? Check जांचिए whether you have kindness in you or not. कि आपके अंदर कृपा है या नहीं? Check whether you have goodness in you or not. जांचिए कि आपके अंदर भलाई है या नहीं? Check whether you have faithfulness in you or not. आप जांचिए कि आपके अंदर विश्वास है या नहीं? Check whether you have gentleness in you or not. जांचिए कि आपके अंदर नम्रता है या नहीं? And check whether you have self-control in you or not. और जांचिए कि आपके अंदर संयम है या नहीं? These 9 slices of the fruit, ये जो 9 भाग एक ही फल के हैं, they join together वे सब मिलकर and they form one fruit. वो एक फल को बनाती है।
If a person has to stay healthy, अगर किसी व्यक्ति को तंदुरुस्त रहना है तो he will not eat one slice one day. वो एक दिन में एक फल नहीं खाएगा, He will have that whole fruit. वो पूरा एक फल खाएगा, He will not have one slice only. सिर्फ एक ही भाग, एक ही टुकड़ा वो नहीं That खाएगा, will not make a big change. वो कोई ज्यादा फर्क उसके अंदर नहीं आएगा। But to be physically fit, लेकिन शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होने के he लिए will have that whole fruit. तो फिर उसे पूरा फल खाना होगा। Just like that. बस उसी तरीके से If you want your spiritual life to be healthy, अगर आप चाहते हो कि आपका आत्मिक जीवन भी तंदुरुस्त हो, you cannot say that, oh, I only have self-control आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पास सिर्फ संयम है and that's enough for me. और बस उतना काफी है। You cannot say that. आप ऐसे नहीं कह सकते। You need rest of the 8 fruits. और आप 8 pieces. और आपको वो 8 भाग की भी जरूरत है, उन 8 टुकड़ों की भी जरूरत है। You cannot say that, oh, I have peace. और आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पास शांति है, I'll not love my brother. मैं मेरे भाई से प्रेम नहीं रखूंगा। You cannot say that. आप ऐसे नहीं कह सकते। If you are saying that and doing that, और अगर आप ऐसा कहते हैं और आप ऐसा करते हैं तो that means you don't have the Holy Spirit in you. तो फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है। I challenge you. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, There is no one in this world कोई भी ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है who has all these 9 pieces in their life जिनके अंदर, जिनके जीवन में ये पूरे 9 भाग है and don't have that Holy Spirit. और पवित्र आत्मा नहीं है। Because the one who has Holy Spirit, क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है only he will have these 9 at once. और सिर्फ उनके अंदर ही ये सारे 9 भाग एक साथ होंगे। The one who has Holy Spirit in him जिनके अंदर पवित्र आत्मा होगा will have these 9 qualities. उनके अंदर ये सारे 9 भाग होंगे। What is the first one? सबसे पहला कौन सा है? It is love. वो है प्रेम। Today we are going to talk about love. आज हम प्रेम के विषय सीख रहे हैं। What actually is love and how does it help us to inherit the kingdom of God? तो प्यार है क्या, प्रेम है क्या और कैसे प्रेम हमारी सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। See, love is knowingly kept at the first position. और देखिए प्रेम जो है वही जानबूझकर सबसे पहले रखा गया है। Love is really the root of all. और प्रेम जो है वो सच में सारी बातों का मूल है। You sin आप पाप करते हो because you love sin. क्योंकि आप पाप से प्रेम रखते हो। You worship God आप परमेश्वर की आराधना करते हो with all your heart, okay? अपने पूरे हृदय के साथ। I'm talking about that kind of worship. मैं उस प्रकार की आराधना के विषय कहता हूँ, Wholeheartedly. पूरे हृदय से You do it आप करते हो because you love God. क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो। You do something wrong आप कुछ गलत करते हो knowingly, जानबूझकर you don't feel bad for that, और आपको उसके लिए कुछ बुरा ही नहीं लगता, means you love doing that sin. तो इसका अर्थ है कि आप उस पाप करने को पसंद करते So हो। whether good or bad, तो चाहे अच्छा या बुरा, the root, जो मूल है it is love. वो है प्रेम। Love drives you crazy. और प्रेम जो है वो आपको अद्भुत रीति से Crazy, mad. आपको दीवाना बनाता है। Now you have to choose. अब आपको चुनना है, For whom? किस लिए? For God परमेश्वर के or लिए for the works of the devil? या फिर शैतान के कामों के लिए? Now, the fruit, the piece, the slice which the Holy Spirit bears, और ये जो टुकड़े, ये जो भाग जो है, जो पवित्र आत्मा का है, that love is the love for Christ. और वो जो प्रेम है वो प्रेम है मसीह का, मसीह के लिए अपना प्रेम। And that obsession, towards Christ, और वही जो परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति हमारा जो भावना है,
that great love towards Christ, वो बहुत महान और बड़ा प्रेम यीशु मसीह के प्रति that comes by the Holy Spirit, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है that keeps us away from sin. और वो हमें पाप से दूर रखता है। Temptation come प्रलोभन आएंगे and you say no, और आप कहेंगे नहीं, I shall not fall. मैं नहीं गिरूंगा। Why? क्यों? Because I love Jesus. क्योंकि मैं मसीह से प्रेम रखता हूँ। You know, this love is an amazing thing. आपको पता है ये प्रेम जो है वो बहुत अद्भुत विषय है, Because if the love was not there, क्योंकि अगर प्यार ही नहीं होता we will not be saved. तो हम बचाए ही नहीं जाते। If love is not there, अगर प्यार नहीं होता God, Jesus would not come on the earth. तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते ही But नहीं। love is there, was there, and shall be there. और प्रेम है और प्रेम होगा और प्रेम हमेशा रहेगा, And that's why we are safe. और इसलिए हम बचाए गए हैं। Jesus died for us because He loved us. यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। We get saved because we love Jesus. हम बचाए गए क्योंकि हमने यीशु मसीह से प्रेम किया। You cannot say that I love God and that's all. आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ Okay. और बस हो गया। Okay, you love God, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं and for sure you will, follow what God says. तो आप निश्चित उन सारी बातों को जो परमेश्वर कहते हैं उसका पालन करेंगे। Let me tell you what Jesus said. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यीशु मसीह ने क्या कहा। Matthew chapter 22, हम निकालेंगे मत्ती उसका 22 अध्याय verse 37 to 39. उसका हम 27 से हम पढ़ेंगे 37 To 39. से लेकर 39 तक। Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. हम पढ़ेंगे उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। What does neighbor mean? पड़ोसी का अर्थ क्या है? Brothers and sisters around us, हमारे इर्द गिर्द जो भाई और बहन होते हैं pastors and elders, और जो पास्टर्स होते हैं और जो बुजुर्ग या वडील होते हैं are the small ones, और babies, या फिर जो छोटे होते हैं या बच्चे होते हैं, everyone, हर एक जन, they are neighbors. वो सभी हमारे पड़ोसी हैं। Here the neighbor, all of them are counted in. और यहाँ पर जो पड़ोसी है उसमें हम सबको गिना गया है। All whom you come across in your daily life. और हर रोज के जीवन में आप जिन लोगों से मिलते हो उन सभी लोगों को आपका पड़ोसी यहाँ पर कहा गया What does है। it say? और क्या कहता है बच्चे? Love them. कि उनसे प्रेम करो। How? कैसे? As you love yourself. जैसे आप खुद से प्रेम रखते हो। Then only you will inherit the kingdom of God. तो फिर ही आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। I dare you. I give you this challenge. मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, If you are having hatred towards someone, अगर आपके हृदय में किसी के प्रति नफरत होगी तो, you are not loving someone, अगर आप किसी से प्रेम नहीं रखते हो you are तो, hating someone, अगर आप किसी से नफरत करते हो तो how much ever you shout, तो चाहे जितना भी आप चिल्लाओ, how much ever you shout hallelujah or whatever, तो जितना भी आप हालेलुया करके चिल्लाओ या जो भी चिल्लाओ, you will not inherit the kingdom of God. तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हो। Because hatred is the work of flesh. क्योंकि नफरत करना ये शरीर का काम है। And this Bible, लेकिन और ये जो बाइबल है it says, वो कहती है the one who hates, जो नफरत करता है, the
one who doesn't have love, जिसके अंदर प्यार नहीं है, he will not inherit the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। No matter what that brother or sister has done to you, चाहे कुछ भी वो भाई या बहन ने आपके विरोध में किया हो, forgive, आप क्षमा कर दीजिए, love, प्यार कीजिए, then only your soul is safe. और तभी आपकी आत्मा बचाई Or जाएगी। your soul is in danger of fire. नहीं तो आपकी जो आत्मा है वो आपकी खतरे में है। Love your brother and sister. आपके भाई और बहन से प्रेम करो, Love your pastor. आपके पास्टर से प्रेम करो, Love the elders in the church. और कलीसिया के जो वडील है उनसे प्यार करो। What does love mean? प्यार का अर्थ क्या है? It's not I love you. इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। Out of love, प्यार से respect them. उस प्यार के अंदर आप उनकी इज्जत भी करो। Out of love, प्यार में you do what they say. जो कुछ भी वो कहते हैं वो करिए। Out of love, प्यार होने के साथ साथ give respect to them. आप उन्हें सम्मान भी दीजिए। That's what love is. बस वही है प्रेम। Sacrifice for them. उनके लिए बलिदान करो, Sacrifice for them. उनके लिए बलिदान करो। That's what love is. बस वही है प्रेम। If you say you have the Spirit, the Holy Spirit in you, और अगर आप कहते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा है, you have taken baptism, आपने बपतिस्मा लिया है, you have the Holy Spirit, पवित्र आत्मा आपके पास है, check आप जांचिए whether you are loving or not. कि आप प्रेम रखते हो या नहीं, Because it is a part of the fruit of the Spirit. क्योंकि यही प्रेम जो है वो आत्मा का फल का एक भाग है। Only love is not enough. सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है, Other parts are there to study on and implement in our life. और दूसरे भाग भी है जिनके ऊपर हमें ध्यान करना है और हमारे जीवन में उन्हें इस्तेमाल करना है। And we'll learn about them in the next weeks to come. और आने वाले हफ्तों में उन सारे फल के भागों को हम सीखेंगे। So now today we understood तो आज हम समझ गए हैं that love is actually very important. कि प्रेम जो है वो सच में बहुत जरूरी है। If we really want to go to the kingdom of God, reach the kingdom of God, कि अगर सच में हमें परमेश्वर के राज्य तक पहुंचना है तो we have to, we should have love in us. तो जरूर हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। Love towards God, परमेश्वर के प्रति प्रेम, love towards our fellow members. और हमारे जो भाई बहन है उन सब से भी हमें प्रेम So रखना let's है। love each other तो आइए एक दूसरे से हम प्रेम करें, in Christ मसीह में प्रेम करें and grow in Christ together. और मसीह में एक साथ बढ़े, And together, when Jesus comes again, और एक साथ जब यीशु मसीह फिर से लौटेंगे we go with him to the kingdom of God. और हम उनके साथ परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। Amen. आमीन। Praise God. प्रेज द लॉर्ड।